ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਯੂਐਸਏ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਵਿਦ ਮਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਪਾਈਦਾ ਹੈ ਚਾਨਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਨੀਆ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। जी नमस्कार, सत श्री अकाल। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਾਹਦੇ ਆਏ ਨੇ? ਪੂਰਾ ਭੜਾਕਾ ਹੀ ਹੈ। 4 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਤੇ 1 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ, ਕੇਰਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਰਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸਾਮ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਡੂਚੇਰੀ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰੈਫਰੀ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰੈਫਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ 5 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੈਰਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾत हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ शुरू। जी मनदीप जी, अगर हम चलें सारी इस प्रक्रिया की ओर कि कैसे रहा है पूरे 5 जगह पर आप जब रिजल्ट आ गए हैं, तो देखा जा रहा है वैसे अभी भी ममता बनर्जी की सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ पर जोर लगा हुआ था बीजेपी का। और मोटा भाई जिनको बोलते हैं, उन्होंने एक तरीके से नाक का सवाल बनाया हुआ था पूरा वेस्ट बंगाल को। हर तरह से अपनी ताकत झोंकी गई थी। तकरीबन बहुत ही बड़ी फोर्स जो है सेंटर से वो वहाँ पर भेजी गई। वो आर्म्ड फोर्स हो जाए या अलग-अलग तरीके से ब्यूरोक्रेसी में हर तरीका यूज़ किया गया है। और कैसे देखते हैं वेस्ट बंगाल के ऊपर सबसे पहले अगर हम बात करें तो? गुरप्रीत, पहले अपन पांचों राज्यों की अभी जो सीटें कितनी कितनी कौन कौन जीता और कौन जीत रहा उस पे पहले बात करते हैं, फिर हम सूबेवार इसका विश्लेषण बिल्कुल। कर लेंगे। जी, जी, जी। पहले हम बंगाल की बात कर लेते हैं। बंगाल में 293 सीटें हैं, जी, 293। इस समय जी। बीजेपी 204 के ऊपर आगे चल रही है और दिख रहा है कि सरकार बना लेगी। हालांकि वहां पर जो काउंटिंग प्रोसेस है वो काफी स्लो चल रहा है। तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की पार्टी है वो 83 सीटों के ऊपर आगे चल रही है। 1 पे कांग्रेस चल रही है, लेफ्ट फ्रंट है 2 पे आगे है, इंडिपेंडेंट भी 2 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो साफ जी। दिख रहा है कि जो मेजोरिटी का मार्क है वहां पर वैसे 146 जो जो भी 146 सीटें जीत जाता है वो वहां पर सरकार बना लेता है। लेकिन आप देखिए कि जो बीजेपी 204 पे पहुंच चुकी है, तो एक मेजोरिटी का मार्क बंगाल में बीजेपी प्राप्त कर चुकी है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 234 सीटें हैं और टीवी के विजय थलापति की जो पार्टी है टीवी के, वो 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि उनके पास क्लियर मेजोरिटी नहीं आई है, क्योंकि 234 सीटें हैं। 117 सीटें जो लेकर आता है उसको मेजोरिटी मिलती है। वहां पर 117 प्लस सीटें नहीं है, 108 हैं। जो एआईडीएमके है वो 51 सीटों के ऊपर है और डीएमके जो है वो 66 सीटों के ऊपर आगे चल रही है। जो इंडिपेंडेंट है जिसमें कांग्रेस भी आ गया और बाकी और भी लेफ्ट की एक आध सीटें आ गई, तो वो 9 सीटें हैं।
तो 108 और 9 को मिला दें तो 117 बन ही जाते हैं। तो मेजोरिटी का जो मार्क है वो मतलब एआईडीएमके और डीएमके के बगैर जो टीवीके है तमिलनाडु में सरकार चला सकती है। तो विजय एक बड़ी धुरंधर बनकर उभरे हैं। विजय को सब जानते हैं कि तमिलनाडु की फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा चेहरा है, और वो 2 साल पहले ही उन्होंने पार्टी बनाई है। तो उनको ये भी कहा जा रहा है कि वो तमिलनाडु के अरविंद केजरीवाल, और कई उनके जो उन्होंने जो घोषणाएं की वो भी वायरल हो रही हैं। खैर, तीसरा है केरलम। केरलम में 140 सीटें हैं। केरलम में 10 साल बाद लेफ्ट बाहर हो गया है। लेफ्ट की अब पूरे भारत में कहीं भी किसी भी सूबे में कोई सरकार नहीं बची है। वहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, 102 सीटें जीती हैं, और उसको यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट बोलते हैं। उस हालांकि उनका जो अलायंस था आईयूएमएल के साथ था, और बाकी के जो जो छोटे छोटे धड़े हैं वहां पर उनके साथ भी था। अकेले कांग्रेस के पास 63 सीटें हैं। तो यानी कि जो कांग्रेस है वो, और जो उसके बाकी के यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, अगर उनके जो बाकी के जो अलाइज पार्टनर हैं वो सरकार बड़े आराम से बना लेंगे। तो लेफ्ट केरला से बाहर हो गया। केरलम 10 साल से लेफ्ट की सरकार थी। असम जी 126 सीटें हैं। बीजेपी बड़े मार्जिन से जीत गई है, 102 सीटें उन्होंने जीती, और कांग्रेस के पास 21 सीटें आई हैं। 3 इंडिपेंडेंट जो लोग हैं वो जीते हैं। तो 102 एक मैसिव विक्ट्री, क्लीन स्वीप ही कह सकते हैं, असम में बीजेपी का दिख रहा है। पौंडीचेरी में मतलब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कोई बड़ा वो नहीं है। पौंडीचेरी में बेसिकली वहां की लोकल पार्टियां हैं। एआईएनआरसी उस पार्टी को बोलते हैं, वो उसका बीजेपी के साथ अलायंस था। हालांकि एनडीए बोलिए, एनडीए सरकार बना रहा है। तो एआईएनआरसी जी अकेले 11, बहुत कम सीटें हैं, 30 सीटें हैं वहां पर, और 30 सीटों में जो 17 सीटें हैं वो एनडीए जीत रहा है, नहीं बीजेपी नहीं जीती है। बीजेपी अकेले ने 4 सीटें जीती हैं, और एआईएनआरसी 11 सीटें, और बाकी के 2 और इंडिपेंडेंट थे वो 2 जीते हैं। तो खैर वहां पर भी एनडीए की सरकार बन रही है। तो ये नंबर गेम हुआ। अब आप सूबा वाइज आप हम बातचीत शुरू कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। सबसे पहले वेस्ट बंगाल की ही फिर बात कर लेते हैं। वहाँ पर काफ़ी आगे चल रही है भाजपा, तकरीबन मेजॉरिटी क्लियर अपनी दिखा रही है। इसके ऊपर दोपहर को ही एक वीडियो भी आ गई थी सामने में, ममता बनर्जी की, बोल रही थी कि अभी काउंटिंग स्टेशंस नहीं छोड़ने हैं, उम्मीदवार बाहर ना आएँ। कैसे देखते हैं? क्या स्वीकार करने लायक ये स्थिति बची है उनके लिए? कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पिछले चुनाव में भाजपा को 28% वोट और 74 सीटें मिली थी, लेकिन अब की बार सिनेरियो दूसरा है। अब की बार ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब एक एक किस्म से आप कह सकते हैं कि क्लीन स्वीप जैसी स्थिति बन गई है, हुँ, और ममता बनर्जी का 100 सीटों से कम रह जाना थोड़ा-सा अखरता है। शुरुआत में मामला चल रहा था 120, 125 सीटें तृणमूल कांग्रेस थी, 160 के आसपास बीजेपी चल रही थी। तो एक बार के लिए लग रहा था कि हाँ, ये डिस्टेंस ये 1 बजते-बजते, दोपहर के 1 बजते-बजते कवर हो जाएगा, तृणमूल कांग्रेस जीत जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और इवन मतलब आपको थोड़ा हैरानी होगी कि ममता बनर्जी भी अपनी सीट से बहुत बार पीछे चली हैं। अभी भी 218 वोटों के आसपास से पीछे चल रही हैं। तो वहाँ पर हालाँकि काउंटिंग स्लो चल रही है, काउंटिंग रोक रखी है, और वहाँ पर तू-तू मैं-मैं भी हुई है। शुवेंदु अधिकारी के एक जो पोलिंग एजेंट हैं। तो मतलब बहुत टफ बंगाल रहा। बंगाल में 2021 में जिस हिसाब से अमित शाह ने मार खाई थी, 2026 में शायद ऐसा दिख रहा है कि वो बदला लेते हुए दिख रहे हैं। देखिए, जो बाकी की चीज़ें हैं, इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार ने क्या किया, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितनी वोटें काटी गई, उसको फ़ायदा बीजेपी को हुआ या फिर तृणमूल कांग्रेस को नुकसान हुआ, वो सब आकलन सारे रिजल्ट आ जाएँगे उसके बाद। क्योंकि उसके बाद ये क्लियरली आप देख सकते हैं कि किस सीट पे कितना मार्जिन है। जिन सीटों पे बहुत कम मार्जिन होगा उन पे सीधी-सी बात है कि उन पे तृणमूल कांग्रेस रोला तो डालेगी कि हाँ, इसमें हमारे वोट काट दिए थे, हमारी वोट चोरी कर ली गई, इस वजह से ये हुआ। पर अभी के लिए अगर हम मतलब ये देखें कि ये स्थिति क्या बनी है, तो इस स्थिति में देखो, पश्चिम बंगाल में बीजेपी का बिल्कुल मतलब मेरे को नहीं लग रहा था जितना लिखा हुआ है। तो खैर बहुत चालें चली गई। एक तो जैसे वो जो हुमायूं कबीर नाम का था तृणमूल कांग्रेस का, उसको उसने अलग पार्टी बनाई, उसकी डील हुई बीजेपी से, उसने मुस्लिम वोट काटे अलग-अलग जगह पे। उसके 2 जो सीटें थी वो जीते भी हैं। तो खैर वो जी। ऐसे भी वो दिख रहा है। बाकी
वहाँ पर झालमुड़ी खा के जश्न मना रही है बीजेपी। और बिल्कुल। शुभेंदु अधिकारी को वहाँ पर माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से वो मतलब सीएम बन सकते हैं। वहाँ पर आपको ध्यान हो, कलकत्ता में आरजी कार रेप मेडिकल कॉलेज में एक रेप हुआ था। उसकी उस महिला की उस स्टूडेंट की माँ भी बीजेपी से चुनाव लड़ रही थी। वो 20,000 वोटों से आगे हैं, तो बीजेपी से वो रुक रही थी। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ पे मतलब काउंटिंग रुकी हुई है, कहीं पे 1 घंटे से, कहीं 45 मिनट से। कई जगह पे जो तृणमूल कांग्रेस के ऑफिसेज हैं, उनको तोड़ने की खबरें आ रही हैं, कहीं पे बीजेपी के जश्न की खबरें आई हैं। तो ये अलग-अलग रुझान दिख रहे हैं। अभी के लिए मतलब मैं इसका विश्लेषण करना हो तो मुझे कुछ चीज़ें लगती हैं। एक तो जो एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी के खिलाफ थी बंगाल में, वो दिख रही है। दूसरा, ये माना जा रहा है कि वहाँ पे पोलराइज़ेशन बीजेपी ने बहुत ज़्यादा किया है। सेम जी। मतलब वो असम में भी आपको उसके बारे में बात होगी, लेकिन मतलब बहुत बुरी तरीके से जो हमें दिख रहा है वहाँ पर पोलराइज़ेशन हुआ है। रीजन्स की बात करें कि अलग-अलग जो रीजन ऐसे गढ़ माने जाते थे ममता बनर्जी के, मैं एक एक उसका पूरा इलाका देख रहा था। 26 सीटें ऐसी थी कि वो हमेशा ममता ही जीतती थी। उनमें से अब की बार सिर्फ 8 तृणमूल कांग्रेस जीत पाई है। तो एक एक बड़ा मतलब जो खुद उसके गढ़ था, मतलब ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं, तो आप हिसाब लगाइए कि स्थिति बहुत ऐसे खराब चल ही रही है। और इसमें मतलब अलग-अलग अभी विश्लेषण होंगे इसको लेकर। जैसे वोट परसेंट की मैं बात करता हूँ। तो वोट परसेंट सबसे ज़्यादा बीजेपी का 45.65% है। और जो तृणमूल कांग्रेस का है वो 40.81% है। तो 5% का सीधा-सीधा अंतर दिख रहा है। 5% वोट बंगाल में बीजेपी लेके गया है। ऐसे में लेफ्ट के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं, लेफ्ट के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं, क्योंकि बंगाल में लेफ्ट की भी सरकारें रही हैं। लेफ्ट भी एक बड़ी धਿਰ के तौर पर वहाँ पर चुनाव लड़ रही थी। हालाँकि 2 सीटों पे ही आगे चल रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को हराने के लिए लेफ्ट का बहुत बड़ा वोट बैंक उसने बीजेपी को वोट किया। अब ये थियरीज़ हैं, ये कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ भी हो सकती हैं। वो तो बाद में इसका जब सही से विश्लेषण होगा तब पता चलेगा। जी। लेकिन सीपीआईएम को वहाँ पर तकरीबन 5% के आस-पास वोटें मिल रही हैं। तो 5% का जो गैप है, अगर अलायंस होता तो मेरे को लगता है कि वो पाट गया जाता। सवा 3% के आस-पास कांग्रेस को वहाँ पर मिल रही है। 1 सीट कांग्रेस भी वहाँ पर जीत रही है। तो ये है जो बाकी और जो छोटी-छोटी पार्टियाँ हैं, किसी को आधा परसेंट, किसी को पौना परसेंट, इंडिपेंडेंट्स भी मतलब ठीक-ठाक परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो ये दिख रहा है। और मतलब बंगाल में ममता बनर्जी किस हिसाब से अब आगे की लड़ाई लड़ेंगी वो तो देखना होगा। पर वहाँ पे आप देखिए कि जैसे ही ये इलेक्शन के रिज़ल्ट अनाउंस इस तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे जो वहाँ के चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये कह दिया कि किसी भी सरकारी दफ्तर से कोई भी सरकारी फाइल गायब नहीं होनी चाहिए, अभी आदेश दे दिया है। जैसे बीजेपी की विक्ट्री बन रही है, ऐसे-ऐसे जैसे कोई बदला लेने के लिए तृणमूल कांग्रेस से ये लोग बैठे हों, तो काफ़ी काफ़ी टफ होने वाला है ममता बनर्जी के लिए अगला समय। मैं ममता बनर्जी का जब ये सारा मामला देख रहा था, तो मैं याद कर रहा था कि सन 2000 के आस-पास वो जब कांग्रेस के खिलाफ पूरे देश में माहौल होता था, तो उस समय एनडीए के एलआई होती थी, वो रेल मंत्री भी बीजेपी एनडीए की जब गवर्नमेंट थी, हुकूमत थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब वो रही थी। उसके बाद कुछ टाइम बिना विभाग की मंत्री रहीं। खैर सत्ता में वो रहती रही हैं लगातार। और 2011 के बाद तो लगातार 15 साल से सत्ता में थी ही। उनकी खूब तारीफ़ें की गई, मतलब दुर्गा उनको बताया गया बंगाल की। लेकिन अब मेरे को लगता है कि उनकी जो एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ी चीज़ थी। हालाँकि वो अभी भी फाइटर हैं। मेरे को लगता है कि अभी भी बीजेपी के लिए बंगाल को रूल कर पाना इतना आसान नहीं होगा। वो लगातार वहाँ पर उनको कड़ी टक्कर देंगी। जी। सो देखते हैं इसमें आगे बनता क्या है। अभी बात तमिलनाडु की करते हैं, वहाँ विजय एक तरीके से मैं देख रहा था कुछ रिपोर्ट्स जिसमें भगवान की तरह उसको प्रेज़ेंट किया जा रहा था जब वो अपनी पार्टी के लिए प्रचार भी कर रहा था। बहुत ज़ोर-शोर से उन्होंने ये सारा कुछ किया और टीवी के अभी काफ़ी आगे चल रही है और ये भी सामने आ रहा है कि उनका कहना है कि कांग्रेस से अगर करना पड़ा समझौता तो वो भी चलेगा।
हाँ, मतलब विजय काफ़ी बड़ी फ़ोर्स बनकर वहाँ पर उभरे हैं और मतलब जैसे पहले तो हम उसकी बात कर लें वोट परसेंट की, तो जी। हम देखते हैं कि तो सबसे ज़्यादा जो वोट परसेंट है वो टीवीके को मिला है तकरीबन 35% के आसपास उनका वोट शेयर चल रहा है, 34.89 दूसरे नंबर पर डीएमके का चल रहा है, तो वो सवा 24% है, तो 10% का अंतर आपको दिख रहा है। बल्कि सवा 10% का मानिए, सवा 10% का सीधा-सीधा अंतर दिख रहा है। एडीएमके का हम देख रहे हैं 21 सवा 21% है, तो वो डीएमके से पीछे हैं। तो ये आप क्लियर देखिए कि एक तरफ एक ही 2 साल के अंदर-अंदर आते ही विजय ने मतलब अपना दमखम दिखा दिया। विजय के पिता कह रहे हैं कि हाँ, क्योंकि कांग्रेस की भी कुछ सीटें आई हैं, तो कांग्रेस के और जो इंडिपेंडेंट्स के साथ मिलके वो सरकार बना सकते हैं। तो कह रहे हैं कि हाँ, हमने कांग्रेस को बोला है कि आप हमारे साथ सरकार बनाइए। क्लियर मेजॉरिटी क्योंकि मिली नहीं, 108 के आसपास सीटें हैं और 9 सीटें बात करें तो वो कांग्रेस को मिली हैं। तो स्टालिन भी 8,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अभी उनकी हार अनाउंस नहीं हुई, पर मतलब हार चुके ही हैं वो। और बीएस बाबू टीवीके के हैं, उन्होंने उनको हराया है। बहुत मतलब 2 साल पहले ये पार्टी बनी थी और आप देखिए कि काफ़ी चीज़ें उन्होंने अपने हाथ में की हैं। तमिलनाडु में उनके घर के विजय के थलापति को आपको मैं थोड़ा बता दूँ, थलापति तमिल शब्द है, थलापति का मतलब होता है कमांडर, तो विजय बिल्कुल कमांडर नए तमिलनाडु के नए कमांडर आप कह सकते हैं। हुँ। हाँ, उनके वायदे बहुत मतलब ऐसे लोग शेयर कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि शादी में लड़कियों के लिए 8 ग्राम सोना देंगे। सोना वग़ैरह न देने की जो बात हाँ, कही है उन्होंने। अब नवजात ब बच्चे को वो सोने की हैरान अंगूठी करने देंगे। वाली चीज़ें हैं वैसे भी। हाँ, हाँ, जी। जो बच्चा पैदा होगा उसको अंगूठी देंगे। तो इस हुँ। किस्म की चीज़ें 2024 में ये पार्टी शुरू हुई थी। बीच में ये कंट्रोवर्सीज़ में भी रहे, कंट्रोवर्सीज़ में इसलिए रहे कि आपको ध्यान हो कि भगदड़ इनके उस रैली में हो गई थी और 17-18 के आसपास लोगों की डेथ हो गई थी। तो ख़ैर ये पूरा मामला रहा है और इनके हालाँकि इनके जो पिता हैं वो कांग्रेस की राजनीति करते रहे वहाँ पर। अब तमिलनाडु में कांग्रेस के साथ शायद वो सरकार बनाएँ। तो मतलब तमिलनाडु में बीजेपी के तो पैर नहीं लगे। ये एक अपन कह सकते हैं कि एक वहाँ पर बीजेपी को 3% से भी कम वोट मिला है। तो तमिलनाडु में बीजेपी के पॉलिटिक्स की तो कोई जगह नहीं है। वो जैसे ट्राई लैंग्वेज फ़ॉर्मूला और वो सारा कुछ करते हैं। वहाँ पे अपने किस्म की राजनीति होती है। डीएमके, एआईडीएमके और अब टीवीके मतलब नई चीज़ बन के उभरी है। हालाँकि वो जैसे पंजाब में भी आम आदमी पार्टी 2022 में ऐसा ही कोई फ़ोर्स बनकर उभरी थी, वैसा ना हो जाए। तो पर ख़ैर उनके जो वायदे हैं मेरे को थोड़ा टफ़ भी लगते हैं कि वो पूरा कर पाएँगे, नहीं पूरा कर जैसे घर की बुज़ुर्ग महिलाओं को ₹2500, जो हेड है उसको ₹2500, कुछ ऐसे-ऐसे कई ऐसे आई कैचिंग उन्होंने वायदे किए हुए हैं, जो थोड़ा मेरे को लगता है कि पूरे कर पाने मतलब उनके लिए मुश्किल होंगे। टीवी एक्टर हैं, आप देखिए साउथ की पॉलिटिक्स में टीवी जो एक्टर एक्टर होते हैं, फ़िल्मों के जो एक्टर होते हैं, उनकी काफ़ी पहले भी धाक रही है और हम बात कर चुके हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर कभी आराम से अलग से बात करेंगे कि जो साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स है वो कैसे कैसे रन होती है। उसमें कई सूबे हैं वो बिल्कुल हार्डकोर आइडियोलॉजी के ऊपर ड्राइव होते हैं, जैसे तेलंगाना, केरला, ठीक है? जो कुछ सूबे हैं वो बिल्कुल ऐसे फीलिंग्स में बात करें ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये बिल्कुल एकदम से उसके ऊपर चलते हैं। देखिए जी। गुरप्रीत बड़ा मतलब इस पे एक चीज़ मेरे को ध्यान और आ रही है, साउथ इंडिया हालाँकि हुँ। अपनी रीजनल पार्टियों को बचा ले जा रहा है, लेकिन हुँ। जो बीजेपी है, वो जी। हरियाणा में चौटालाज को खत्म कर चुका है। पंजाब हुँ। में आप देखिए कि बादलों को खत्म कर चुका है, ठीक है? बीजेपी जी। अपने रीजनल नीतीश कुमार को बिहार में खत्म कर दिया। पवार को उन्होंने मतलब महाराष्ट्र में निपटा दिया। शरद पवार बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं, तो वो निपट ही जाएँगे। तब उनकी भी नीतीश कुमार से कोई भिन्न स्थिति नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को निपटा दिया। तो मतलब रीजनल फोर्सेस जो नॉर्थ इंडिया की हैं या फिर साउथ इंडिया के अलावा जो रीजनल फोर्सेस हैं, उनको तो ये मतलब ऐसे दही-रोटी में खा के बैठे हैं। पंजाब बचा हुआ है 2027 में। ख़ैर अब इन रिज़ल्ट्स के बाद वो पंजाब के लिए थापियाँ तो मारने लग ही गए हैं। हुँ। जी, जी। और इससे आगे अगर बात इसी के साथ हम ये करें कि 5 राज्यों में 7 सीटों पर उपचुनाव भी इसी के साथ हुए हैं और उसमें एक इतिहास भी रच दिया गया है। अजीत पवार जिनका निधन हो गया था, उनकी पत्नी के द्वारा।
उन्होंने किसी भी विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाला इतिहास बना दिया है। 2 लाख से ज्यादा का तो मार्जिन ही बताया जा रहा है। हाँ, 2,18,000 वोटों से वो चुनाव जीत गई हैं और देश में जी। 5 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों के ऊपर बेसिकली बाय इलेक्शन थे। उसमें बारामती की सीट थी, अजीत पवार की सीट खाली हुई थी क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी। अभी जो सुनेत्रा पवार हैं, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ही 2 चुनाव थे। एक महाराष्ट्र की राउरी सीट थी, उसके जो बीजेपी के अक्षय कार्डिले वहाँ से जीत गए हैं। तो जी। 2 ये हो गया। कर्नाटक में कांग्रेस जीत गया है, उमेश मेटी, और एक कर्नाटक में ही दावणगेरे साउथ में सीके प्रभाकरन जीते हैं। गुजरात में थी, गुजरात में बीजेपी जीती है, त्रिपुरा में बीजेपी जीती है, नागालैंड में थी, वहां पर बीजेपी जीती है। तो 4 सीटें बीजेपी के हाथ में हैं, एक सुनेत्रा पवार और 2 सीटें कांग्रेस। 7 में से ऐसे जो बाय इलेक्शंस का रिजल्ट है। तो बाय इलेक्शंस में हालांकि क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव थे, किसी का ध्यान नहीं था। जैसे केरला था, केरला भी बहुत इंपॉर्टेंट सूबा था। केरला की बात इसलिए थोड़ा अपन कर लेते हैं गुरप्रीत, क्योंकि आप ध्यान करिए कि मतलब केरला ऐसा सूबा था जहां पर पहली बार भारत में लेफ्ट की सरकार बनी थी 1957 में। नंबूदरी ने वहां पर लेफ्ट की गवर्नमेंट बनाई थी। उसके बाद त्रिपुरा में लेफ्ट रहा, बंगाल में लेफ्ट रहा, और भी कई सूबों में प्रभावी रहा। त्रिपुरा में भी जब लेफ्ट वहां पर कोलैप्स हुआ तो वापसी नहीं कर सका है। बंगाल में जब से लेफ्ट वालों की सत्ता गई है, वो वापसी नहीं कर पा रहे हैं। तो लोग अब ये भी कह रहे हैं कि क्या केरला में भी वो बाउंस बैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेफ्ट को लेकर भारत में अब एक विश्लेषण हो रहा है, खासकर चुनावी लेफ्ट, जो इलेक्टोरल लेफ्ट है, जो चुनाव की राजनीति में भाग लेता है। पंजाब में भी एक टाइम तक जो लेफ्टिस्ट थे वो सीटें जीतते थे, लेकिन अब कोई भी लेफ्टिस्ट मतलब जमानत भी नहीं बचा पाता है। तो ये कुछ चीजें हैं, और इसकी मतलब अभी कि भारत में लेफ्ट के एकदम से किसी भी सूबे में किसी कोई भी सरकार ना रहने के क्या कारण है, इस किस्म के अब एनालिसिस आगे देखने को मिलेंगे। लेकिन केरला केरलम उनका आखिरी गढ़ था, और आखिरी गढ़ कांग्रेस ने ढहा दिया है। हालांकि केरलम में वो बाउंस बैक करते रहे हैं। मतलब उससे जी। पहले एक बार लेफ्ट की सरकारें रही, फिर कांग्रेस की सरकारें रही, फिर लेफ्ट की सरकारें दोबारा रही हैं, अब कांग्रेस दोबारा जीत गया है। तो खैर मतलब वहां ये कह देना कि बिल्कुल ही खत्म हो गया है, ऐसी तो स्थिति नहीं है। पर ये मतलब मेरे को लगता है कि अब लेफ्ट के लिए बाउंस बैक करना काफी काफी टफ होगा आगे। जी। और इसी के साथ थोड़ा-सा अगर आप इस पर नज़र डाल दें, इधर खबर आ रही है कि स्टालिन अपनी ही सीट हार गए हैं, उनके साथ तो अजीब ही मामला हो गया है। टीवी हाँ, जो बाबू थे, उन्होंने बड़ी वोट से हरा दिया उनको। मतलब एक हाँ, हाँ, मैं कह रहा मुख्यमंत्री। 8 अब अपन बात कर रहे थे तमिलनाडु की, जी। बता ही रहा था कि 8,000 जी। 8,000 वोटों से आ रहे हैं स्टालिन। हुँ। तो वो काफ़ी एक वो है जो टीवी के बापू हैं, वो आगे चल रहे हैं। तो ये है। थोड़ा असम पे हम बात कर लेते हैं। जैसे असम एक पोलराइजिंग फैक्टर रहा। असम के जो मुख्यमंत्री थे हेमंत बिस्वा शर्मा, उनकी जो हम स्टेटमेंट लेते हैं, वो सारी मुसलमानों के खिलाफ वाली स्टेटमेंट लेते हैं, बांग्लादेश के घुसपैठियों के खिलाफ स्टेटमेंट लेते हैं। वहां पर बेसिकली जो कांग्रेस का नेतृत्व था, वो गौरव गोगोई वगैरह, उनको इतना समर्थन हासिल नहीं था। वो ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन है, 24/7 पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। वही हेमंत बिस्वा शर्मा आप देखिए कि वो 24 घंटे, ठीक है कि उसकी आइडियोलॉजी की आप कितनी ही आप बुराई करिए, पर आप ये तो देखिए वो ग्राउंड पे 24 घंटे मौजूद है, और वो 24 घंटे राजनीति कर रहा है, और ऐसे लड़ाई भिड़ाई वाली राजनीति भी कर ले रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा वैसे पहले कांग्रेस में ही होता था। इनकी कोई वैसे विचारधारा तो होती नहीं, इनकी विचारधारा तो सत्ता में आना होता है। तो खैर अब अमित शाह का करीबी बना हुआ है, और अब हुँ। दूसरी बार वहां पर, तीसरी बार कहेंगे अब तो, तीसरी बार वो जी। मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे असम में। असम पोलराइजिंग फैक्टर रहा। मतलब इवन जो हेमंत बिस्वा शर्मा थे, वो असम के चुनाव खत्म होने के बाद वो तुरंत जी। बंगाल चले गए थे। बंगाल में उन्होंने लगातार बांग्लादेश, घुसपैठिया, ये सब मुद्दे चलाए रखे, और उसमें उन्होंने जो हिंदू फ्रैक्शन है, उसमें ठीक ठाक वो जो वोटें हैं वो पोलराइज की। जी। और इसी के साथ हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अगर बात वेस्ट बंगाल के चुनावी जो रिजल्ट हैं, उसके पंजाब पर पड़ने वाले असर की बात करें, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे मैं नेता देख रहा हूँ भाजपा के, जो लगातार ये पोस्ट कर रहे हैं अभी कि बंगाल जीत लिया है, अभी आगे पंजाब की बारी है। कैसे देखते हैं इन चीज़ों का असर कितना पड़ेगा पंजाब की इलेक्शंस के ऊपर? क्योंकि जैसे मैंने सबसे पहले भूमिका
में बात की ही थी कि रेफरी की भूमिका जो है वो लगातार जैसे समस्या में है। हम शुरू करने से पहले भी बात कर रहे थे कि आप बेशक चाहें ना किसी को, लेकिन वो बोलेंगे नहीं यही आपके लिए अच्छा है। तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, रवनीत सिंह बिट्टू ने ये सारा सिलसिला शुरू किया जैसे ही बंगाल के रिजल्ट आने शुरू हो गए, तो हुँ, वो सबसे पहले हम देख रहे थे कि चढ़-चढ़ के ये बात बोल रहे थे कि अब पंजाब की बारी है। हरियाणा के जो अनिल विज हैं, उन्होंने लिख दिया कि अब पंजाब की बारी। सारी बीजेपी अब ये बोल रहे हैं कि पंजाब की बारी है। जैसे पंजाब कोई इनका ऐसे सेफ सा ग्राउंड हो और आएँगे, ये चौके-छक्के मारेंगे और चले जाएँगे। हुँ, पंजाब बहुत टफ है, पंजाब अलग चीज़ है, मतलब इतना आसान नहीं होगा। पर ख़ैर आज मैं बड़ा हैरान था, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में सारा दिन रिज़ल्ट देख रहे थे, उसके बाद कुछ प्रोफ़ेसर्स के साथ हम खाना खाने के लिए चले गए, लंच पे चले गए, तो सिख प्रोफ़ेसर्स बात कर रहे थे, पंजाब में भी अब बीजेपी आनी चाहिए। तो मैं सुन रहा था उनको भी, तो वो वैसे बता रहे थे कि हमारे तो जो ऐसी-ऐसी नज़दीकियाँ हैं बीजेपी में, आरएसएस में, सिखों को तो बीजेपी से कोई दिक्कत ही नहीं, ऐसी-ऐसी थियरी बता रहे। तो मैं सोच रहा था कि किसान आंदोलन का जो प्रभाव है, जो ग्रामीण वोट बैंक है, वो इन जो क्या बोलते हैं, सत्ता के नज़दीक रहने की जिनकी आदत है, उनके बहकावे में तो नहीं आएँगे। ख़ैर अभी मतलब पंजाब के ऊपर कमेंट कर पाना काफ़ी हुँ, काफ़ी मुश्किल है। बहुत अर्ली होगा कि जो जो लोग ये कह रहे हैं कि पंजाब में बीजेपी जीत जाएगी, क्योंकि पंजाब में जब ये एसआईआर करेंगे, उस समय भी रोड़ा पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि किन की वोटें टारगेट होंगी। और हुँ, पंजाब में बेसिकली जो रेजिस्टेंस की पॉलिटिक है, आंदोलन की राजनीति है, वो बहुत मजबूत है। और मुझे तो ये भी शक है कि गाँव में बीजेपी वालों को घुसने भी दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। क्योंकि अभी भी मतलब बीजेपी पंजाब के पास कोई ऐसी करिस्मेटिक चीज़ नहीं है कि जिसको दिखा के वो लोगों को एक सपना बेच सके। पिछली बार जैसे कैप्टन वगैरह को, सुनील जाखड़ को, इन सबको लेके गए, उनका क्या निकला? कुछ नहीं हुआ, वो अपनी सीटें भी नहीं जीत पाए। ठीक है? तो मुझे मतलब यही लग रहा है कि अभी स्थिति ठीक नहीं है, मतलब इनके लिए बीजेपी वालों के लिए पंजाब के मामले में तो। हाँ, इनका ज़ोर पूरा लगाएँगे। हालाँकि अमित शाह की मुझे एकदम से वो स्टेटमेंट ध्यान आती है कि ब्रह्मा भी नहीं बता सकते पंजाब में क्या होगा। तो वो स्थिति है और अमृतपाल सिंह बाहर आएँगे और कई प्लेयर्स पंजाब की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सक्रिय होंगे। उनका रिज़ल्ट जी। क्या होगा, उसका क्या असर पड़ेगा, वो मतलब अभी के लिए गेस कर पाना या बोल पाना काफ़ी मतलब अर्ली हो जाएगा, काफ़ी अर्ली होगा। हुँ, हुँ, जी। लेकिन इनके लिए कुछ अर्ली नहीं है, भाजपा वालों के लिए इन्होंने प्रेडिक्शन अपनी कर दी है, देखते हैं वो प्रेडिक्शन कितनी सही बैठती है। ख़ैर, अंत में अगर हम बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की कर लें, तो अमेरिकी जहाज़ पर ईरान का मिसाइल अटैक हुआ है। हाँ, 2 मतलब इसको थोड़ा मतलब क्योंकि समय की कमी है, थोड़ा शॉर्ट में रखते हैं। जी। ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट में एक अमेरिकी नेवी शिप के ऊपर 2 मिसाइलें दागी। हमले में जहाज़ में नुकसान पहुँचा है, उसको पीछे भी हटना पड़ा है। तो ख़ैर ये ईरान की तरफ से ये जानकारी दी गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने होर्मुज़ में अपने जो नेवी के जो जहाज़ हैं, उनके हमलों की जो खबर है, उसको ख़ारिज किया है और सेंटकॉम ने कहा कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। अमेरिकी जो नेवी है वो तो ये कह रही है कि वहाँ से जो फँसे हुए जहाज हैं उनको सुरक्षित बाहर निकालने में मदद करेंगे और कोई अगर रुकावट पैदा करेगा तो हम तगड़ा जवाब देंगे। तो ख़ैर यही हुँ, है कि ईरान लगातार चेतावनी दे रहा है। आईआरजीसी लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर आपको दिख रही है कि बहुत एग्रेसिव है। जंग को रोकने के लिए नए-नए प्रस्ताव दिए जा रहे हैं, इस्लामाबाद भी उस प्रस्ताव दे रहा है। अमेरिका का जो व्हाइट हाउस है, वो भी एक प्रस्ताव के साथ आया है, लेकिन 14 पॉइंट है उसमें अब तक। लेकिन उसके ऊपर कोई अभी बातचीत ईरान की तरफ से दिखती नहीं, कोई पॉजिटिव साइन नहीं दिख रहे। कार्गो शिप पर बोट्स से हमला आईआरजीसी ने किया है। कई कार्गो शिप्स छोटे-छोटे नावों से वो कार्गो शिप्स के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो मतलब ऐसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी बहुत मुश्किल है क्योंकि कल ही जब वो ये छोटी-छोटी नावों से इन्होंने हमले शुरू किए तो 49 जो जहाज़ थे, बड़े शिप थे, उन्होंने व्यापारिक जहाज़ों ने अपने रास्ते बदले हैं। तो ख़ैर अमेरिका में पेट्रोल महँगा हुआ है, ये भी एक खबर है और मतलब अलग-अलग जगहों पे उसका असर हॉर्मुज़ का दिखेगा। हुँ, जी। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियाँ साझा की बहुत-बहुत धन्यवाद। जी।